دوستو کیا آپ جانتے ہیں سب سے پاگل پن والی بات کیا ہے؟ یہ نہیں کہ لوگ آپ کو اس لیے سنجیدگی سے نہیں لیتے کیونکہ آپ میں کوئی کمی ہے، یہ بھی نہیں کہ آپ ذہین نہیں ہیں یا آپ میں قابلیت نہیں ہے یا آپ خوبصورت نہیں، اور یقین کریں یہ اس لیے بھی نہیں کہ آپ کمزور ہیں یا آپ کے پاس زیادہ پیسہ نہیں ہے۔ اصل مسئلہ کہیں اور ہے۔ اصل حقیقت یہ کہ آپ ایک ایسی غلطی کر رہے ہیں جو آپ کی زبان سے ایک لفظ کہے بغیر لوگوں کے دل و دماغ میں یہ پیغام ڈال رہی ہے کہ اس انسان کو نظر انداز کرنا بالکل ٹھیک ہے۔ اور سب سے خطرناک بات جانتے ہیں کیا ہے؟ آپ کو خود بھی اندازہ نہیں کہ آپ وہ غلطی کر رہے ہیں۔ وہ غلطی آپ کی ایک عادت بن چکی ہے، اتنی پرانی کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہی آپ کی فطرت ہے۔ لیکن ذرا ایک لمحے کے لیے رک کر سوچیں، جس دن آپ نے اس ایک غلطی کو بس ایک بار ٹھیک کر لیا، اسی دن لوگوں کا رویہ بدلنا شروع ہو جائے گا۔ لوگ آپ کو غور سے دیکھیں گے، آپ کی بات مکمل ہونے سے پہلے نہیں کاٹیں گے۔ کچھ لوگ اچانک آپ کے قریب آنا چاہیں گے جیسے آپ میں کوئی نئی کشش پیدا ہو گئی ہے۔ کچھ لوگ آپ کی باتوں کو زیادہ وزن دینے لگیں گے، آپ کی بات کو اہمیت دیں گے، آپ کو ویلیو دیں گے، اور ہاں کچھ لوگ ناراض بھی ہوں گے، لیکن یہ ناراضگی بری نہیں ہوگی، یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ آپ اب ویسے نہیں رہے جیسے وہ چاہتے تھے۔ یاد رکھیں، جب لوگ آپ کے بدلنے پر بے چین ہونے لگیں، جب انہیں لگے کہ وہ آپ کو پہلے کی طرح کنٹرول نہیں کر پا رہے، تو سمجھ لینا آپ صحیح راستے پر ہیں۔ کیونکہ عزت مانگنے سے نہیں ملتی، ویلیو مانگنے سے نہیں ملتی، محبت بھیک سے نہیں ملتی، وہ تب ملتی ہے جب آپ خود کو نظر انداز ہونے کے قابل نہیں چھوڑتے۔ جب لوگ آپ کو ریجیکٹ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں تو جانتے ہیں اس غلطی کو سٹیپ بائی سٹیپ۔ سٹیپ 1، آسانی سے پڑھ لیے جانے والا انسان بننا چھوڑ دیں۔ Stop being easy to figure out۔ ایک کڑوی سچائی سننے کے لیے تیار ہے؟ انسان کا دماغ سکون چاہتا ہے، اور سکون اسے تب ملتا ہے جب وہ سامنے والے انسان کو ایک لیبل لگا کر اپنے ذہن میں موجود فائل میں بند کر دیتا ہے۔ وہ لیبل ہے، یہ انسان محفوظ ہے، یہ نقصان نہیں پہنچائے گا، یہ کبھی انکار نہیں کرے گا، یہ ہر وقت مدد کے لیے تیار رہے گا، یہ اختلاف سے ڈرتا ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ دماغ کو محنت نہیں کرنا پڑتی، اس لیے انہیں سمجھ لینا آسان ہوتا ہے، اور جو آسانی سے سمجھ آ جائے وہ آہستہ آہستہ غیر اہم بن جاتا ہے۔ اب ذرا خود کو دیکھیں، اگر آپ برسوں سے ہر کسی کے لیے دستیاب رہے، اگر آپ نے اپنی تھکن، اپنی مصروفیت اور اپنی حدود کو نظر انداز کر کے ہمیشہ دوسروں کو ترجیح دی ہے، اگر آپ نے نہیں کہنے کے بجائے خاموشی سے خود کو پیچھے رکھا ہے، اور اگر آپ کی زندگی کا بڑا حصہ لوگوں کو خوش رکھنے میں گزر گیا ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ لوگوں نے آپ کو ایک خاص خانے میں رکھ دیا ہے اور اس پہ ایک لیبل لگا دیا ہے۔ یہ خانہ نہ خطرناک ہے، نہ دلچسپ ہے، نہ ہی قابل توجہ ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں انسان نظر تو آتا ہے مگر محسوس نہیں ہوتا۔ ہم اسے کہہ سکتے ہیں انویزیبل باکس، نظر انداز کیا جانے والا وجود آپ کو اس باکس کے اندر رکھ دیا گیا ہے۔ اب یہاں سے نکلنے کا طریقہ سنیں۔ آپ کو لڑائی نہیں کرنی، نہ کسی پر چیخنا ہے، نہ ہی اچانک کسی اور انسان میں بدل جانا ہے۔ بس ایک قدم اٹھائیں جو لوگوں کی توقعات کے خلاف ہو۔ آپ نے اپنے اوپر لگا ہوا وہ لیبل تبدیل کرنا ہے۔ اگر آپ ہمیشہ خاموش رہتے آئے ہیں تو اگلی بار اپنی بات رکھیں، چاہے آواز ہلکی ہو مگر جملہ واضح ہو۔ اگر آپ کسی کا کام اپنے ذمے لیتے رہے ہیں تو ایک دن سکون سے کہہ دیں آج میں یہ نہیں کر پاؤں گا، کوئی وضاحت، کوئی معذرت نہیں۔ اور اگر آپ ہمیشہ سارے لاتے ہیں تو کسی چھوٹی بات پر کہہ دیں میری رائے مختلف ہے۔ آپ فوراً فرق محسوس کریں گے، چہرے سنجیدہ ہو جائیں گے، نگاہیں آپ پر ٹھہر جائیں گی۔ سامنے والا لمحہ بھر کے لیے سوچے گا یہ وہ انسان نہیں رہا جسے میں نے آسان سمجھ لیا تھا۔ اور بس یہی وہ لمحہ ہے جہاں آپ پس منظر سے نکل کر لوگوں کی توجہ کا مرکز بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کا وہ انویزیبل باکس کھل جاتا ہے، کیونکہ جو انسان آسانی سے پڑھا نہ جا سکے وہی انسان قابل احترام بن جاتا ہے۔ سٹیپ 2، ایسے جیئیں جیسے آپ کا وقت واقعہ قیمتی ہے۔ ایکٹ لائک یور ٹائم میٹرز۔ اب یہ بات دھیان سے سنیں اور خود سے ایماندار رہیں۔ اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ دوسرے ان کے وقت کی قدر نہیں کرتے، میسج دیر سے دیکھتے ہیں، وعدہ ٹالتے ہیں اور ان انتظار میں رکھ دیتے ہیں۔ لیکن سچ یہ ہے، یہ مسئلہ باہر سے شروع نہیں ہوتا، یہ آپ کے اندر سے جنم لیتا ہے۔ لوگ آپ کے وقت کی عزت اس لیے نہیں کرتے کیونکہ آپ نے خود اپنے وقت کو کبھی اہم ثابت ہی نہیں کیا۔ ذرا اپنے معمولات پر نظر ڈالیں، آپ میسج آتے ہی جواب دے دیتے ہیں، چاہے آپ مصروف ہی کیوں نہ ہو۔ کوئی آپ کو آواز دے دے تو اپنا کام ادھورا چھوڑ کر فوراً لپک جاتے ہیں، اور کہیں جانا ہو تو مقررہ وقت سے پہلے پہنچ کر خاموشی سے انتظار کرتے رہتے ہیں۔ یہ سب عمل بظاہر اچھے لگتے ہیں مگر لاشعوری طور پر ایک پیغام چھوڑتے ہیں، اور وہ پیغام یہ ہے کہ میرے پاس وقت کی کوئی کمی نہیں ہے، میری ترجیحات واضح نہیں ہے۔ لوگ وہی سلوک کرتے ہیں جو آپ انہیں سکھاتے ہیں۔ اب ذرا طریقہ بدل کر دیکھیں، اگلی بار کوئی آپ کا نام لے تو فوراً پلٹ کر مت دیکھیں، اپنی بات مکمل کریں، پھر سکون سے متوجہ ہوں۔ یہ چھوٹا سا توقف سامنے والے کو یہ احساس دلاتا ہے کہ آپ کسی کے حکم پر نہیں بلکہ اپنی رفتار پر چلتے۔ جب کسی جگہ داخل ہوں تو نظریں ادھر
उधर भटकाने के बजाय अपने कदम मजबूत रखें। ऐसे महसूस करवाएं जैसे आप यहाँ किसी की इजाजत से नहीं बल्कि अपने मकाम के साथ हैं। और जहाँ तक मैसेजेस का ताल्लुक है, हर पैगाम का फौरी जवाब देना ना कोई फर्ज है ना कोई इखलाक की जिम्मेदारी। कुछ देर रुक जाना बदतमीजी नहीं कहलाता, ये खुद को तरजीह देने की अलामत है। याद रखें, जो इंसान हर वक्त दस्तयाब हो वो कीमती नहीं समझा जाता। जिस दिन आपने अपने वक्त को अपनी तवनाई, अपनी तवज्जो और अपनी जिंदगी का सरमाया मान लिया, उसी दिन से लोग भी आपके वक्त को संजीदगी से लेने लगेंगे। क्योंकि दुनिया में इज्जत मांगने से नहीं मिलती, वो खुद ब खुद आती है जब आप खुद को सस्ता नहीं होने देते। स्टेप 3, हर बात पर माजरत करना बंद कर दे। स्टॉप सेइंग सॉरी फॉर एवरीथिंग। ये कदम शायद सबसे ताकतवर है और सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाने वाला राज भी। आप देखें, हम रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों पर भी माजरत कर देते हैं। अगर किसी से रास्ता ले रहे हो कहते हैं सॉरी, किसी सवाल पूछे कहते हैं सॉरी, अपनी राय देते हैं कहते हैं सॉरी लेकिन मेरी राय ये है, या फिर बस मौजूद होने पर भी कहते हैं सॉरी। और हर बार जब आप ऐसा करते हैं आप अपने आप को छोटा कर रहे होते। आप लोगों को ये पैगाम दे रहे हैं कि मैं यहाँ फिट नहीं हूँ, बराए करम मुझ पर नाराज ना हो। आप समझ नहीं पाते लेकिन लोग ये शऊरी तौर पर महसूस कर लेते हैं और नतीजा ये होता है कि वो आपको कम अहम समझने लगते हैं। अब आइए इसका मुतबादिल सीखिए जो ताकत भी दे और एहतराम भी बढ़ाए। अगर देर हो जाए, सॉरी मुझे देर हो गई कहने के बजाय कहे थैंक्स फॉर वेटिंग। ये जुमला न सिर्फ आपके एतमाद को ज़ाहिर करता है बल्कि सामने वाले को भी एहतराम देता है। अगर किसी को कॉल के लिए परेशान करना पड़े, सॉरी क्या मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ के बजाय कहें कि 1 मिनट दें, आपका वक्त कीमती है लेकिन मुझे बात करनी है। ये सीधा और वाज़ेह है और आपकी मौजूदगी की कदर बढ़ाता है। अगर आप अपनी राय देते हैं, सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ लेकिन मैं ऐसे सोचता हूँ के बजाय कहें कि मेरी राय ये है, ये बताता है कि आपकी राय अहम है और आप किसी की मंजूरी के मोहताज नहीं है। सिर्फ एक बार आजमाएं और फर्क खुद देखें। आप महसूस करेंगे कि लोग आपके साथ बात करने का अंदाज बदल देते हैं। वो ज्यादा संजीदगी से सुनते हैं, ज्यादा गौर से जवाब देते हैं और आपकी मौजूदगी को बोझ नहीं समझते। क्योंकि जब आप हर छोटी बात पर माफी मांगना छोड़ देते हैं तो आप खुद को काबिल एहतराम इंसान के तौर पर ज़ाहिर करते हैं। लोग जान लेते हैं कि आप अपनी जगह के मुस्तहिक हैं और उसी दिन से आपका असर बढ़ना शुरू हो जाता है। स्टेप 4, खामोशी की ताकत को सीखें। खामोशी ये एक छोटा सा लफ्ज है मगर असर में बहुत बड़ा। ज्यादातर लोग खामोशी को बर्दाश्त नहीं कर पाते। वो हर लम्हा बोलने पर मजबूर हो जाते हैं सिर्फ इसलिए कि वो खामोशी को अजीब और गैर आरामदेह समझते हैं। आप सोचें, जब आप किसी के सामने बात कर रहे हैं और अचानक वो रुक जाए, कुछ न बोले, तो आपकी क्या कैफियत होती है? दिल थोड़ी देर के लिए धड़कता है तेज, दिमाग सोचने लगता है क्या मैंने कुछ गलत कहा या अब मैं क्या करूँ? यही ताकत है खामोशी की। ये लोगों को बेचैन कर देती है और वो अपनी गलतियों या अपनी जल्दबाजी को छुपाने के लिए मजीद बोलने लगते। अब अमली तरीका देखें। अगली बार कोई आपसे सवाल करे, फौरन जवाब न दे, 2 सेकंड के लिए रुके, सांस ले, फिर अपनी बात वाज़ेह अंदाज में कहें। अगर आप किसी मीटिंग या गुफ्तगू में हैं और लोग आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं तो जल्दी न करें, वक्त ले और जुमले को सोच समझ कर पेश करें। ये क्यों काम करता है? जब आप फौरन जवाब देते हैं तो लोग समझते हैं कि आपको अप्रूवल चाहिए, कि आप चाहते हैं कि वो आपको पसंद करे। लेकिन जब आप सोचकर बोलते हैं, जब आप वक्त लेते हैं, तो लोग समझते हैं कि आप वो हैं जो फैसला कर रहे हैं, कि आपकी राय अहम है और उन्हें आपके मुताबिक हरकत करना पड़ेगा। इसकी छोटी छोटी मिसालें हैं कि किसी दोस्त या कुलीग को सवाल पर फौरन जवाब देने के बजाय 2 सेकंड रुक कर बोले। अगर कोई आपसे इख्तिलाफ करे तो फौरन जवाब देने के बजाय खामोश रहकर गौर करे, फिर अपने जुमले का इंतखाब करे। गुफ्तगू के दौरान कभी कभी सिर्फ सुने, बोलने की जल्दी न करे। ये छोटी छोटी हरकत आपकी शख्सियत को मजबूत और पुरअसर बनाती है। लोग महसूस करते हैं कि आपकी बात में वजन है, आपकी मौजूदगी अहम है और आप हर लम्हे सबके अप्रूवल के मोहताज नहीं है। खामोशी जब सही इस्तेमाल हो, लोगों के रवैये बदल देती है, उनके अंदाज़े गुफ्तगू पर असर डालती है और आपको काबिल एहतराम और पुरकशिश बना देती है। स्टेप 5, हमेशा जाने के लिए तैयार रहें। बी रेडी टू लीव। ये कदम शायद सबसे ताकतवर और सबसे ज्यादा असर डालने वाला है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा इज्जत वही इंसान हासिल करता है जो किसी चीज का मोहताज नहीं होता, जो अपनी कीमत जानता है और जिसे बोझ के तौर पर नहीं देखा जाता। सोचे, कौन ज्यादा एहतराम हासिल करता है? वो जो अपनी नौकरी बजाने के लिए गिड़गिड़ाता है या वो जानता है कि वो कहीं भी जा सकता है और उसे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं? जो शख्स किसी चीज के लिए कम जरूरतमंद होता है उसे ज्यादा इज्जत मिलती है। यही उसूल इंसानी तल्लुकात में भी काम करता है। अब अमली तरीका देखें। अगर कोई आपके साथ बदतमीजी करे या आपकी कदर न करे तो फौरन बहस में न पड़े, न समझाने की कोशिश करे, न अपनी इज्जत के लिए लड़े। बस खामोशी से उठे और मौका छोड़ दे। अगर कोई आपकी बात को नजरअंदाज करे, वहाँ से चले जाए। अगर कोई आपकी मौजूदगी को कम समझता हो तो कमरे से निकल जाए। और अगर किसी ने आपसे बुरा सलूक किया
गुफ्तगू खत्म करें और खुद को निकाल ले। ये अमल आपको खुद मुख्तियार बनाता है और सामने वाले को उलझन में डाल देता है। वो समझ नहीं पाते कि आपने बर्दाश्त क्यों नहीं किया, क्योंकि वो सोचते हैं कि आप हमेशा हर सूरत हाल में रुक जाएंगे। ये छोटा सा कदम मगर बड़ा असर रखता है। लोग अचानक आपकी इज्जत करने लगेंगे, लोग आपके फैसले को संजीदगी से लेंगे, लोग जान लेंगे कि आप अपनी हदूद के साथ हैं और किसी की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। याद रखें, इज्जत मांगने से नहीं मिलती, ये तब आती है जब आप खुद अपनी कदर जानते हैं और किसी भी गैर मुनासिब सलूक के सामने नहीं झुकते। और सबसे अहम बात, जब आप ये रवैया अपना लेते हैं तो लोग आपको देखकर डरते नहीं बल्कि आपकी मौजूदगी को संजीदगी से लेने लगते हैं। आप वो इंसान बन जाते हैं जिसे सब जानना चाहते हैं, जिसके साथ लोग अच्छा सलूक करने पर मजबूर हो जाते हैं और जिसकी कदर खुद ब खुद बढ़ जाती है। याद रखें, ताकत और इज्जत उस शख्स को मिलती है जो किसी के काबू में नहीं, जो अपनी कीमत जानता है और जो हमेशा जाने के लिए तैयार रहता है। बॉटम लाइन फाइनल मैसेज, सबसे पहले एक हकीकत ज़हन में रखें, आप इंतजार नहीं कर सकते कि लोग खुद ब खुद आपकी इज्जत करें। इज्जत मांगने से नहीं मिलती, ये तब मिलती है जब आप खुद अपनी कदर जानते हैं और उसे दिखाते हैं। आपको अपना रवैया बदलना होगा, अपने अमल के जरिए लोगों को ये सिखाना होगा कि आप किसी के काबू में नहीं है और आपकी मौजूदगी काबिल एहतराम है। सबसे पहली चीज, प्रिडिक्टेबल होना छोड़ दें। लोगों को मालूम ना हो कि अगली हरकत आपकी क्या होगी। ये छोटी तब्दीलियां कभी हाँ कभी नहीं, कभी खामोश कभी बोल, आपको दिलचस्प और गैर मुतवक्का बना देती है। दूसरी चीज, हर सांस पर माफी मांगना बंद करें। माफी हमेशा आपको छोटा दिखाती है, लोग आपको बोझ समझना शुरू कर देते हैं। सिर्फ जरूरी माफी मांगे और बाकी में अपनी राय और अपनी मौजूदगी पर फख्र करें। तीसरी चीज, ऐसा बोलें। जल्दी में बोलना आपकी कमजोरी ज़ाहिर करता है, धीमा सोच समझ कर बोलना आपकी ताकत और एतमाद दिखाता है। लोग आपकी बातों को ज्यादा गौर से सुनेंगे और आपकी राय का वजन बढ़ेगा। चौथी चीज, अपने वक्त को कीमती समझे। फौरी रद्द देने या हर किसी की ख्वाहिश पूरी करने की आदत तुर्क करें। जब आप अपने वक्त को अहम समझते हैं तो लोग भी उसे अहम लेने लगते हैं। और आखिरी मगर सबसे अहम बात, गलत सलूक पर रुके नहीं, चल दें। अगर कोई आपकी कदर नहीं करता या बदतमीजी करता है तो बहस या वजाहतों में वक्त जाया न करें। खामोशी से पीछे हटना, मौका छोड़ देना लोगों को हैरान और एहतराम करने पर मजबूर कर देता है। ये छोटी छोटी तब्दीलियां सिर्फ एक भी अपनाएं तो लोग आपके रवैये से हैरान होंगे। सब अपनाएं और आप वो इंसान बन जाएंगे जिसे सब जानना चाहते हैं, जिसके साथ लोग एहतराम और एहतियात के साथ बात करेंगे और जिसकी कदर सब खुद बढ़ाएंगे। अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंची हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा दें और हमारा साथ जारी रखें। याद रखें, ये सब मशवरे आपकी खुद की कदर और एतमाद बढ़ाने के लिए है, न किसी को दबाव में डालने, काबू पाने या नुकसान पहुंचाने के लिए। हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपनी ताकत को हमेशा इखलाकी और मुस्बत हदूद में इस्तेमाल करें। आपने ये सब मालूमात मुफ्त में सीखी है तो एक क्लिक करना कम से कम हक बनता है। चैनल को सब्सक्राइब करें। अब वक्त है कि ये सब असूल अपनी जिंदगी में अमली तौर पर आजमाएं और अपनी जिंदगी की कदर बढ़ाएं। दूसरों को नुकसान पहुंचाने के बजाय अपनी हदूद और वक्त की अहमियत को समझें। याद रखें, इज्जत और असर झुकने या दबाने से नहीं बल्कि अपने रवैये और एतमाद से हासिल होता है। अपनी ताकत को मुस्बत तरीके से इस्तेमाल करें, दूसरों के साथ एहतराम और एहतियात के साथ पेश आएं और जिंदगी में अपने लिए कीमत और एहतराम कायम करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।